Salim Ali was an average student in school. He left college and spent the next 10 years in Burma as a partner in his brother's timber and wolfram business. Most of the time in Burma, he would be observing birds and wildlife. When the business collapsed, Salim Ali came back and got a job as a guide lecturer at Mumbai's Prince of Wales Museum in 1927. After 2 years, he decided to study ornithology at the Berlin University Zoological Museum. When Salim Ali returned to Mumbai a year later, his guide lecturer's post had been abolished. There was no chance of working for the government either, because he did not have a college degree. Salim's wife, Tehmina's family, owned a small cottage in Kihim, a coastal village to the south of Mumbai. The young couple moved there. Kihim was green and full of birds. This kept Salim Ali occupied with his favorite hobby. Don't take a job, Tehmina advised him, if you can't enjoy it. In 1930, Salim Ali went to the BNHS with a proposal to study Indian birds systematically, which had never been done before. He did not want a salary, only expenses for these ornithological surveys. For the next 20 years, he roamed the subcontinent studying birds from Kutch to Sikkim and Afghanistan to Kerala, weaving history, ecology, and geography into his description of birds and their habitat. In 1941, he published The Book of Indian Birds, the first of many more books to come. It was an instant success, and its royalties enabled him to repay his old business debts. By 1960, the man who had once been rejected for a government job for want of a degree was guiding PhD scholars. Salim Ali helped the development of ornithology in India. Although recognition came late, he received several honorary doctorates and numerous awards. He was awarded Joy Gobinda Law Gold Medal by the Asiatic Society of Bengal in 1953. He received honorary doctorates from the Aligarh Muslim University, 1958, Delhi University, 1973, and Andhra University, 1978. In 1967, he became the first non-British citizen to receive the gold medal of the British Ornithologists' Union. Salim Ali's writings and awards brought him large amounts of money, but he kept very little for himself, liberally handing out scholarships and grants to needy students. Salim Ali donated his 1976 Paul Getty Wildlife Conservation Prize worth $50,000 to a conservation research fund at the BNHS. Writing letters was one of Salim Ali's passions. The setting up of the Bharatpur and Karnala bird sanctuaries, the decision not to destroy Kerala's Silent Valley for the sake of a power project, and many other similar measures were due to his powerful letters to prime ministers and forest officials. Salim Ali also loved motorbikes. In 1950, he shipped his massive Sunbeam 500cc motorbike to Sweden. With his luggage strapped behind him, he rode into an ornithological conference in his bike, startling the other delegates. After the conference, he rode through Europe, meeting friends and watching birds. In France, Salim Ali was injured in a collision with a speeding truck. But the next morning, he got out of his hospital bed and repaired the bike himself. Head bandaged, he kept a lunch appointment later that day. Until he was 87 years old, Salim Ali conducted major expeditions. दोस्तों, आज हम सीखेंगे अनफॉरगेटेबल सलीम अली। यह पूरा लेसन सलीम अली के बारे में है। सलीम अली अपनी पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे, मतलब एवरेज स्टूडेंट थे, 50% आने वाले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब उनका कॉलेज छोड़ दिया तब वो नेक्स्ट 10 ईयर तक वो अपने भाई के साथ बर्मा में एक बिज़नेस, जो लकड़ी का बिज़नेस होता है, वो उनके साथ वो बर्मा में करने लगे। तो बर्मा में जब वो लकड़ी का व्यवसाय कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तब उनको वहाँ पे ढेर सारे बर्ड्स दिखे। उनकी लाइफ जो है बर्ड्स की, और वाइल्ड लाइफ जो बोलते हैं, मतलब बर्ड्स और दूसरे बर्ड्स, उनको ऑब्जर्व करने का चांस मिला।
और बाद में जब उनका धंधा चौपट हो गया तो वो वापस आ गए। कहाँ पे? मुंबई में आ गए। मुंबई में आने के बाद उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम में गाइड लेक्चरर का काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद में उनकी दिन ब दिन बर्ड्स के बारे में रुचि बढ़ रही थी। फिर उन्होंने 2 साल के बाद में उन्होंने ऑर्निथोलॉजिस्ट की पढ़ाई करने के लिए बर्लिन यूनिवर्सिटी जूलॉजिकल म्यूज़ियम में वो गए। वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई अच्छे से की। जब वो वापस मुंबई में आए 1 साल के बाद, तो उन्होंने देखा कि उनका जो जॉब था वो जॉब अब उनको मिल नहीं सकता था। क्यों नहीं मिल सकता था दोस्तों, पता है? क्योंकि उनके पास कॉलेज की कोई भी डिग्री नहीं थी और गवर्नमेंट का रूल था कि उनको वहाँ पे लेक्चरर बनने के लिए उनके पास एक डिग्री होनी चाहिए थी। फिर भी उन्होंने हारे नहीं और उनकी फैमिली तहमीना उनकी वाइफ और उन्होंने कोहिम नाम का जो गांव है वहाँ पे एक छोटा सा घर ले लिया अपना खुद का, जो साउथ मुंबई में है, एक कोस्टल एरिया है, और वहाँ पे वो रहने लगे। वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ पे रहते समय उन्होंने देखा कि उनके आजू बाजू का जो सराउंडिंग है वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। वहाँ पे बर्ड्स को देखने को चांस मिलेगा और उनकी हॉबी वही थी बर्ड्स को ऑब्जर्व करने की। तो उनकी वाइफ उनको बोली कि अगर तुमको जॉब नहीं करना है तो मत करो, जो तुमको पसंद आएगा, जो तुम इंजॉय करोगे वही करो। उन्होंने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में उन्होंने फिर एक प्रपोजल डाला स्टडी के लिए, इंडियन बर्ड्स के स्टडी के लिए। उन्होंने वहाँ पे लिखा कि मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, पर ऑर्निथोलॉजिस्ट को अपना स्टडी करने के लिए जो खर्चा होना चाहिए था वो खर्चा दिया जाए करके। तो फिर उनको वो खर्चा दिया गया। उन्होंने बहुत अच्छे से सर्वे किया, ऑब्जर्वेशन किया बर्ड्स के बारे में, यहाँ तक कि 20 ईयर्स तक ये उन्होंने कंटिन्यू रखा। और जब वो यहाँ वहाँ घूम रहे थे तब कच्छ से लेके सिक्किम तक, अफ़गानिस्तान से लेके केरला तक, वो सारे जितने भी बर्ड्स होते हैं वहाँ की, उनकी जो लाइफस्टाइल होती है, उनकी जो हिस्ट्री होती है, वो एक बुक में लिखते गए। और ये जो उनका लिखने का जो ढंग था, इसीलिए उन्होंने 1941 में अपनी पहली बुक जो होती है, वो पहली बुक उन्होंने 1941 में बच्चों अपनी पब्लिश की थी, जिसका नाम था द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। इस बुक ने और उनका हौसला बढ़ा दिया और वो बहुत सारा राइटिंग करते गए, बर्ड्स के बारे में लिखते गए। उनकी सक्सेस दिन ब दिन बढ़ती गई। और उनका ओल्ड बिजनेस क्या था? उनका ओल्ड बिजनेस था कि उनको गाइड लेक्चरर बनना था। तो वो अपनी मुंबई के वही जॉब में 1960 में वो जहाँ पे उनको कॉलेज किया गया था, वहीं पे अब वो पीएचडी के बच्चों को पढ़ाने के लिए, गाइड करने के लिए आने लगे। वहाँ पे उन्होंने जो बच्चे पक्षी विज्ञान के बारे में पढ़ना चाहते थे, उनको उन्होंने बहुत मेहनत और बहुत हेल्प भी की उन्होंने इंडिया के बच्चों को। और इसके बाद में मतलब लेट हुआ, लेकिन बाद में उनका जो वर्क है वो देखने के बाद उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले गए। उनको डॉक्टरेट की पदवी से सम्माना भी गया है। यहाँ तक कि उनको जय गोविंद लॉ गोल्ड मेडल भी दिया गया। उसके बाद में उनको 1953 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की तरफ से उनको ये अवार्ड मिला था। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उनको डॉक्टरेट की पदवी का सम्मान दिया गया। ये डॉक्टरेट की पदवी का सम्मान उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी मिला दोस्तों 1973 में। उसके बाद में उनको आंध्र यूनिवर्सिटी से भी 1978 में डॉक्टरेट डिग्री से उनको नवाजा गया। सलीम अली एक ऐसे ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब पक्षी वैज्ञानिक थे जो फर्स्ट नॉन ब्रिटिश सिटीजन जिनको गोल्ड मेडल ऑफ ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट यूनियन की तरफ से गोल्ड मेडल मिला उनको। उन्होंने अपनी राइटिंग वर्क जो था वो करते रहे। उनको बहुत सारा पैसा मिला, लेकिन वो उस पैसों में से उनको जितना यूज़ होगा, जितना चाहिए, उतना ही छोटा अमाउंट वो अपने पास रखते थे और बाकी के अमाउंट वो पुअर नीडी बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए देते थे। उसके बाद में जब उनको जो भी
अवार्ड्स मिलते थे। एक अवार्ड था उनका पॉल गिटी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्राइज, जो था $50,000। वो भी उन्होंने, जहाँ पे उनका इंटरेस्ट था, वो वाली जगह, मतलब उन्होंने वहाँ पे स्टडी किया था, वो थी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को मेंटेनेंस के लिए उन्होंने दे दिया। उन्होंने राइटिंग लेटर, मतलब जो केरला की भरतपुर में जो कर्नाला बर्ड सेंचुरी थी, वहाँ पे पावर प्रोजेक्ट बनने वाला था और सलीम अली नहीं चाहते थे कि वहाँ पे अगर पावर प्रोजेक्ट बनेगा तो बर्ड्स वहाँ पे नहीं रह सकते। इसीलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को और फॉरेस्ट ऑफिसर को खत लिखा, लेटर लिखा, और वो ये साइलेंट इन्वायरमेंट है उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया। और उनको, सलीम अली को बाइक का भी बहुत शौक था, उनको बाइक बहुत पसंद थी। तो उन्होंने अपने बाइक के ऊपर अपना सब सामान वो रखते थे, और जब वो जहाँ बाहर जाते थे 1950 में, जब वो स्वीडन में अपने कॉन्फ्रेंस के लिए गए, तब वो ऐसे ही बाइक पे गए, और उन्होंने पूरी कॉन्फ्रेंस होने के बाद जब वो अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए बाद में निकल पड़े, तो उन्होंने वही बाइक यूज़ की थी दोस्तों। इतना शौक उनको बाइक का था कि वो कॉन्फ्रेंस पे पीरियड के लिए कॉलेज में जाते थे तो वो बाइक ही यूज़ करते थे, और कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद अपनी मीटिंग, यूरोप मीटिंग दूर दूर में जाते थे तो वो बाइक ही यूज़ करते थे, ताकि जब रास्ते में उनको बर्ड्स दिखे तो उनके फ़ोटो ले सके। एक दिन जब फ्रांस जा रहे थे तो स्पीड में चलने वाली ट्रक से वो टकरा गए, उनका एक्सीडेंट हो गया, और पर दूसरे ही दिन वो हॉस्पिटल से जब बाहर निकले तो उन्होंने अपनी खुद की बाइक उन्होंने खुद ही रिपेयर की। उस दिन का लंच उन्होंने लेट लिया, लेकिन अपना बाइक का जो काम करना था वो उन्होंने उनके हेड पे बैंडेज था, फिर भी उन्होंने पूरा कर दिया था। इतना उनको लव था। तो अपने 87 ईयर्स के जब सलीम अली हुए, तब तक उन्होंने बर्ड्स के लिए बहुत सारे कार्य कर चुके थे, महत्वपूर्ण कार्य कर चुके थे।